हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ऑन दिस सेकंड सेशन ऑन लॉ ऑफ क्राइम। हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट very important aspects of Indian Penal Code, law of crime from the perspective of CLAT and ALAT. From 2020 onwards, CLAT and ALATs have evolved a lot. They have started to ask different kind of questions, not just superficial questions, but they were digging deeper. They were trying to check whether the students have studied law in a proper perspective or not, and that's the reason why we are discussing this kind of topic in front of you. The topic name is common intention and common object and similar intention, and what is the difference between common intention and common object and similar intention. Okay, so that's what we are going to understand. So I'm sure we know that CLAT 2023 is in the month of December, and we are bringing this module to cover all your syllabus. My dear students, we are going to cover the full syllabus for you, okay, at a particular pace, and thereby you will be in a position to get a lot of benefit. All these modules are available on protalentdigital.com. कहाँ पे अवेलेबल होंगे? protalentdigital.com. Okay, so protalentdigital.com is the content. It's a site available free of cost for everyone. Okay, wherein we are making these videos, we are bringing PDF, practice PDF with this video. That is number 2. Number 3, we have covered all previous year questions for you on our site. Okay, chaliye, great. So दोस्तों, don't miss out on it. Okay, great. So in the last class we talked about crime and we talked about, you can say, criminal liability. We know that look, crime is not defined, okay, but it is termed as an act of commission as well as omission. Sometimes you commit something, sometimes you had a duty to do something but you omit it, and that's what the crime is. Simple. Okay, so that is the meaning here. In general sense, any, you can say, kind of action which is prohibited by legislature will be termed as a crime. So let's say due to, you can say, when you are traveling on the road and you are not wearing a seat belt, that may be a crime. Okay, okay, anyway, so whatever is declared by legislature can be a crime. That is the point here. So big question here is, what is the meaning of liability? Liability means who has a responsibility of committing crime. Okay, and that is where our topic, you can say, elaborates here. Today's topic is common intention and common object and similar intention. So here, when more than one person, they are doing some kind of, against a criminal activity, whose liability it is what we have to find out. Let us say someone, let's say some around 4 people decided to rob a bank. They wanted to rob a bank, and then 3 people went inside the bank, okay, and 1 person was guarding the bank. When this person was guarding the bank, was he having similar responsibility as in the other 3 people? That's a big question. Okay, and that is what we are going to answer. Okay, so before we move forward, let me remind you two essential things of crime. One is mens rea, other is actus reus. Mens rea is a guilty mind, actus reus is a guilty act. Okay, so keeping this in mind, let me start to talk about this criminal liability. So when we talk about liability, okay, we all know a very simple thing, and that is very simple thing. Let's say Mr. A, with all intention, he killed Mr. B. So Mr. A kills Mr. B, then obviously Mr. A is liable. Okay, now comes joint liability. Okay, now what do you mean by joint liability? Mr. A and Mr. B decided, okay, to kill Mr. C. Okay, so together they decided, they go there and they kill Mr. C. That becomes a joint liability. Okay, now what is a constructive liability? Constructive liability is Mr. A, Mr. B, okay, and Mr. C wanted to kill Mr. D. Okay, while you can say the final action
जो चीज़ का फाइनल अंजाम देना था, ठीक है, क्राइम का फाइनल अंजाम देना था, वो फाइनली मिस्टर सी ने दिया, बट मिस्टर बी और मिस्टर सी ने उनको हर जगह पे मदद करी. ओके, they were also interested in doing it. ठीक है, जस्ट लाइक दिस यू कैन से बैंक रॉबरी करने गए थे, ठीक है, कि भाई ए बी और सी अंदर थे और मिस्टर डी बाहर थे और ये तीनों तीन ने बैंक की रॉबरी करी, ठीक है, और फिर वो भाग रहे थे, तब फाइनली मिस्टर डी पकड़े गए. तो क्या मिस्टर डी ने क्राइम किया था क्या? बिल्कुल. दैट्स अ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी. यू नीड टू कंस्ट्रक्ट, यू नीड टू डेवलप अ थिंकिंग इन द माइंड कि क्या वो बंदा रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं, क्या उसका एक्शन से हम उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं कि नहीं. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दोस्तों, आप उसके एक्शन से, उसके कंसिक्वेंसेस से, एक्शन के कंसिक्वेंसेस से आप आइडेंटिफाई करने के काबिल होने चाहिए कि क्या उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं. ठीक है, दैट इज हाउ द लायबिलिटीज आर. One is called vicarious liability, which is not applicable in, you can say, crime or related issues. Generally, it is applicable in the tort laws. Vicarious liability के लिए सबसे important part होना चाहिए. There has to be master-servant relationship, employee-employer relationship, boss-servant relationship, or you can say agent, you can say, and you can say principal relationship. These are the relationship needed. Clear hai? Very good. So दोस्तों, here we are talking about the liability which are joint liability और constructive liability, और उसके लिए word बनेंगे common intention and common object. Now what is the meaning of common intention and what is the meaning of common object? पहले समझते हैं by definition which is mentioned in section 34 of IPC. Common intention ऐसा बोलता है, when a number of persons engaged in a criminal act with a common intention, each person is made liable as if he alone did the act. Okay, note किया जाए common intention में क्या है. For example, let us say this Mr. A, Mr. B and Mr. you can say C went to rob a bank and there is Mr. D, ठीक है, who was guarding. चार लोग साथ में गए, Mr. D was guarding बाहर, ठीक है ना, उसको देख रहे थे बराबर के अंदर सब बराबर है, कोई गलती से बाहर से आ न जाए, पुलिस आएगा तो वो सिटी मारेंगे, लोग भाग जाएंगे. एंड दैट इज हाउ द मिस्टर डी वाज डूइंग. सो मिस्टर डी हैड अ कॉमन इंटेंशन. ठीक है, सो व्हेन मिस्टर डी, ए बी एंड सी हैड अ कॉमन इंटेंशन, ठीक है, चोरी कर रहे थे एबीसी, पर मिस्टर डी ने भी चोरी करी, ऐसा माना जाएगा. दैट इज नोन एज कॉमन इंटेंशन. दोस्तों, नोट किया जाए, कॉमन इंटेंशन अपने आप में ऑफेंस नहीं है. इंटेंशन अपने आप में ऑफेंस नहीं है, ये सर नो, ठीक है, उसके साथ गिल्टी एक्ट होना जरूरी है. सो जो कोई गिल्टी एक्ट हुआ और उस गिल्टी एक्ट के लिए जो कॉमन इंटेंशन होगा, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इज दैट वेरी क्लियर? ग्रेट. सो दैट इज नंबर 1. नंबर 2, कॉमन ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या बोलता है, आपको यहां समझ आ गया. इंटेंशन सिर्फ अकेला इंटेंशन कोई काम का नहीं है. देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ यू कैन से गिल्टी एक्ट. ओके, कॉमन ऑब्जेक्ट, एवरी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली. नोट किया जाए, हियर नंबर ऑफ पर्सन एंगेज इन अ क्रिमिनल एक्ट विथ अ कॉमन इंटेंशन. सब लोगों का एक कॉमन इंटेंशन था. यहां पे एक अनलॉफुल असेंबली थी, ठीक है, एंड दे आर हेल्ड लायबल फॉर एनी क्रिमिनल एक्ट done in furtherance of a common object. Okay, so they had an unlawful assembly, they did not have a common intention, ठीक है, but they were held liable for a criminal act. कोई criminal act करने के लिए, ठीक है, उनको ये सब करना पड़ा, ठीक है, तो भैया वो common object कहा जाएगा. They did not have a common intention, ठीक है, common intention नहीं था, पर फाइनल जो काम करना है उसको अंजाम देने के लिए, फाइनल जो काम करना है उसको अंजाम देने के लिए उनको रास्ते में जो भी करना पड़ा, वो सब चीज है ना, वो सब चीज कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है, कि वो जो अचीव करना चाहते थे उसके साथ कनेक्टेड है. ठीक है, तो दोस्तों, सिमिलर इंटेंशन सेक्शन 35 में बताया है, सेक्शन 34 में कॉमन इंटेंशन बताया है, या नोट किया जाए. सो दोस्तों,
कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में थोड़ा सा अंतर है, उसको हम 2 मिनट में समझते हैं। सो पहले ये समझते हैं कि ये जो इंटेंशन के बारे में बात है, ठीक है, उसके लिए जो वर्ड यूज होता है कॉमन, ठीक है दोस्तों, यहां से आपको समझ आ जाना चाहिए कि कॉमन मतलब सब लोगों के में सेम है, सब लोगों का कॉमन है। सिमिलर दोनों लोगों का या सब लोगों के मन में सिमिलर विचार है, कॉमन नहीं है। यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, ओके, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट है। सो व्हेन such an act is criminal by reason of it is being done with the criminal knowledge or intention, ठीक है, whenever an act which is criminal only by reason of its being done with a criminal knowledge or intention is done by several persons, each of such persons who joins in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with that knowledge or intention, ठीक है, which means Mr. A wanted to kill Mr. C, ठीक है, ओके, उन्होंने मिस्टर बी को बोला कि मैं मिस्टर सी को मारने के लिए जा रहा हूं, ठीक है, मार डालूंगा उसको, ऐसा बोला, और मिस्टर बी ने उसको सपोर्ट किया, ठीक है, कि ठीक है ये ले चाकू, ये ले बंदूक, जाके मार दे, ठीक है, and that way when Mr. C goes, that is also known as similar intention, okay, that is known as similar intention, ठीक है दोस्तों। कॉमन इंटेंशन अभी हमने देखा था, whenever a number of person engage in a criminal act with a common intention, नोट किया जाए, they have a word called common, ठीक है। So what is the meaning of common intention? So we know that intention is nothing but mens rea, and that is highest degree, that is the highest degree of culpability, even greater than the knowledge, even greater than the recklessness, even greater than the negligence, okay। So हमने देखा था, you can say mens rea comprises of 4 things, one is intention, second is knowledge, recklessness and negligence, तो उसमें सबसे हायर डिग्री पे है इंटेंशन। इंटेंशन हालांकि डिफाइन नहीं किया है आईपीसी में, पर सेक्शन 34 इसी चीज को बताता है, ठीक है, कॉमन इंटेंशन के बारे में बोलता है, ठीक है। यहाँ पे जो एक्ट है, ठीक है, जहां पे यहाँ कहीं पे बोला व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन, सो दैट एक्ट मीन्स कमीशन एज वेल एज ओमिशन, ये तो हम सीख चुके थे, यस और नो, सो दैट इज स्टिल एप्लीकेबल, वो भूल देंगे नहीं, है ना, वो भूलेंगे नहीं। एक्ट एंड ओमिशन ऑल्सो इंक्लूड्स सीरीज ऑफ एक्ट्स, ये भी हमने लास्ट क्लास में सीखा था, यस और नो, सीरीज ऑफ एक्ट, series of omissions, that is also applicable. So common intention means that there was a pre-arranged plan, नोट किया जाए वर्ड में pre-arranged plan, and all of the individuals are acting in furtherance of that plan. What is the meaning of furtherance? फर्दरेंस का मतलब होता है उस प्लान को अंजाम देने के लिए जो जो करना पड़े, दैट इज नोन एज फर्दरेंस। समझ आया? वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, ग्रेट। सो कॉमन इंटेंशन, ठीक है, इज एन एक्ट डन in furtherance of common intention, is also known as, you can say, crime, okay, ठीक है। So the liability would be there, okay, there will be liability, okay। अगर आपने कोई कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में जो जो भी किया उसके लिए आप लायबल है, ठीक है। शंकरलाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में यही हुआ, जहां पे you can say, जहां पे there were few people who, you can say, wanted to, you can say, hurt someone, ठीक है भाई, एक बंदे को, दूसरे बंदे को, तीसरे बंदे को, एक चौथे बंदे को मारना था, ठीक है। एंड फॉर दैट, यू कैन से, है ना, इसको मारने के लिए ए ने बी और सी को लेट्स से कार में उनको वहां तक लेकर गया, ठीक है, उनको सपोर्ट किया, उनको बंदूकें पकड़ाई, उनके हाथ में चाकू पकड़ाया, दैट इज डेफिनेटली नोन एज द एक्ट द इन फर्दरेंस टू कॉमन इंटेंशन, ठीक है। समटाइम्स, ठीक है, द प्री अरेंज्ड प्लान नहीं होता है, कभी कभार प्री अरेंज्ड प्लान नहीं होता है, देयर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड प्रायर, बट ऑन द स्पॉट मीटिंग ऑफ माइंड हो सकता है, ये सर नो, ठीक है। प्री अरेंज प्लान नहीं है, ठीक है, पर ऑन द स्पॉट वो प्री अरेंज एक्टिविटी के नजरिए से एक सिमिलर एक मीटिंग ऑफ माइंड हो सकता है, एंड देयर बाय दे कम टुगेदर एंड दे हिट
someone. ओके, सो एक मजेदार सा केस हुआ था कृष्णा गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, जहाँ पे दो लोग इकट्ठा हुए, है ना, उनका कोई प्री अरेंज प्लान था नहीं, पर जब एक बंदे ने चोरी करना चालू किया, दूसरे बंदे ने भी उसी तरीके से उसको मदद करना चालू किया. ऑन द स्पॉट मीटिंग ऑफ माइंड बना. when you have an on the spot meeting of mind, that is called meeting of mind, and that means crime होने के पहले there is a pre arranged plan. pre arranged plan और plan के बीच में gap कितना होना चाहिए, कोई स्पेसिफिक नहीं है, ऑन द स्पॉट हो गया, दैट इज सफिशिएंट. यस और नो, इज दैट कंफर्टेबल? एंड देन कम्स सिमिलर इंटेंशन. ठीक है, नाउ दोस्तों, द इंटेंशन कुड बी सिमिलर बट नॉट अ कॉमन इंटेंशन अंडर सेक्शन 34 इफ प्री मीटिंग ऑफ माइंड कैन नॉट बी प्रूव्ड. ओके, फॉर एग्जाम्पल, है ना, इत्तेफाक से ऐसा हो सकता है कि भाई मिस्टर डी को मारने के लिए मिस्टर ए आए, मिस्टर बी आए और मिस्टर सी आए. ठीक है, तीनों तीन अलग अलग टाइम पे आए और तीनों तीन ने अलग अलग तरीके से मिस्टर डी को मारा. ठीक है, तो ये तीनों तीन का सिमिलर इंटेंशन था, ऐसा बोल सकते थे. पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद के केस के अंदर ऐसा ही हुआ. सो कॉमन इंटेंशन पहले समझते हैं, फिर वापस सिमिलर इंटेंशन पे आता हूं मैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए. सबसे पहली चीज, प्री मेडिटेशन. That means meeting of mind before the actual action has to be there. Common intention may develop at the spur of the moment, but should be shared among each other. सबके बीच में कॉमन होना चाहिए. That is very important. Common intention can only be proved by the facts and circumstances of the cases. You cannot, you can say, क्योंकि इंटेंशन है ना, लोगों के मन की बात है. How do you prove it prior? You can prove it by action, by circumstances, by the fact. Okay, उसके द्वारा ही आप सब कुछ कर सकते हो. That is very important. Okay, common intention is not a similar intention. Yes or no? It is not a similar intention. Benefit of doubt shall be given to accused. ठीक है, in a common intention, जब तक शॉर्ट वे में प्रूव नहीं होता है तब तक आप कॉमन इंटेंशन लगा नहीं सकते हो. देयर हैज टू बी प्रॉपर प्रूफ, there has to be proper support, and if there is a benefit of doubt, that is to be given, and that is section 38. Okay, when common intention is not there, section 38 is applied. Person concerned in a criminal act may be guilty of different offenses. When several persons are engaged or concerned in the commission of criminal act, they may be guilty of different offenses by means of that act. So they were doing different actions and they were guilty of it. Okay, so what is common object? Common object क्या होता है? ठीक है, कि सब लोग मिलकर कोई एक ही चीज की गलती करते हैं. ठीक है, at the spur of the moment they develop common intention and they are disturbing public tranquility. Generally common object comes with the public tranquility. Section 141 से section 160 of IPC defines, you can say, common object. Okay, उसके अंदर जो भी crime आते हैं they are of common object. Okay, so unlawful assembly, 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं. So condition number 1 है ना, 141 के अंदर condition number 1 is 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं. ठीक है, and they have an object first to overawe by criminal force or to show criminal force the central or any state government or parliament or legislature of any state or any public servant in the exercise of lawful power of such public servant. किसी public servant को अपना lawful activity करने से रोकने के लिए उसके ऊपर criminal force यूज किया या और है. ठीक है, which means 5 या 5 से ज़्यादा लोग आने चाहिए प्लस, ठीक है, इनमें से कोई भी एक चीज. ठीक है, any one of them. ओके, या तो फर्स्ट या तो सेकेंड, टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और एनी लीगल प्रोसेस. ठीक है, और टू कमिट एनी मिसचिफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स. ठीक है, एनी पर्सन टेक द पोजीशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और डिप्राइव समवन और बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स एनी पर्सन टू डू व्हाट इज नॉट लीगली बाउंड टू डू. ठीक है, तो ये 5 में से कोई भी एक हो गया तो बोला जाएगा पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब किया. ठीक है, व्हाट इज द इंग्रेडिएंट ऑफ अनलॉफुल असेंबली? सबसे पहली चीज 5 या 5 से ज्यादा होना चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, दे मस्ट हैव अ कॉमन ऑब्जेक्ट इन देयर माइंड. ठीक है, उनके माइंड में कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए. ये कॉमन ऑब्जेक्ट कभी भी फॉर्म हो सकता है उनके माइंड में, जरूरी नहीं है कि प्री अरेंज्ड सोच के आए हो. कॉमन ऑब्जेक्ट
must be out of the 5 mentioned in this section 144 जो हमने बात करी, जो 5 चीजें बोली उनमें से एक होना चाहिए, ठीक है। ये 5 जो चीजें बोली थी उसमें से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। सो an assembly which may not be unlawful initially to start with, but it may turn out to be unlawful later on, will be also, you can say, liable for this unlawful assembly which is a common object के केस के अंदर। समझ आया दोस्तों, ये बिल्कुल नोट किया जाए। assembly which was not unlawful when it assembled but subsequently becomes unlawful and there is a preconcept of mind is not required, and thereby that is also criminal liability is attracted. If a number of persons reduced to less than 5 in the trial stage, okay, 5 लोग तो चाहिए ही अनलॉफुल असेंबली में। इनफैक्ट जब पुलिस ने देखा कि क्राइम हो रहा है तो उनको दिखा बहुत सारे लोग हैं, पर जब पुलिस सही में लोगों को पकड़ने गई, ठीक है, तो पुलिस को पूरे 5 लोग नहीं मिले, ठीक है, कम लोग मिले। ऑब्वियस है ना, लोग भाग गए, पुलिस आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, ठीक है, तो वो 5 लोग बोल सकते हैं कि अरे भाई है ना, हमको क्यों पकड़ा, 5 होने चाहिए, ठीक है। 141 में तो 5 लोगों को बोला था, तो यहाँ पे बोलेंगे 5 लोग थे, ये तो पक्का ही है, पर अभी अगर सिर्फ तुम 2 लोग हो, अभी सिर्फ तुम 3 लोग हो, तुम तीनों 3 के ऊपर ये 141 लगेगा। इज दैट वेरी क्लियर? एंड बट if there is an indication that some unidentified person were involved in the crime, then you can say it can be applied. So that is the same stuff, ठीक है, कि अगर जो unidentified people है ना, उनके लिए भी अप्लाई होगा। ओके, इज दैट कंफर्टेबल? ग्रेट। मतलब वो तो पता ही नहीं है वो कहाँ पर है, पर जो लोग पकड़े गए उनके ऊपर तो पक्का 141 अप्लाई होगा। तो दोस्तों फटाफट क्लियरली समझ लेते हैं कॉमन इंटेंशन वर्सेस कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है। दोस्तों कॉमन ऑब्जेक्ट सेक्शन 34 हमने कहा दैट इट इज नॉट एन ऑफेंस इन इटसेल्फ बट इट लेज डाउन द प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी, ठीक है, कि क्या ABC तीनों 3 मिलकर लायबल है, वाइल कॉमन ऑब्जेक्ट इज एन ऑफेंस इटसेल्फ, ठीक है। आप कॉमन ऑब्जेक्ट है, आप कोई चीज तोड़ रहे हो, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को नुकसान पहुंचा रहे हो। कॉमन इंटेंशन, ठीक है, अंडर सेक्शन 34 इज नॉट डिफाइंड, यू कैन से एनीवेयर इन IPC, इट इज नॉट डिफाइंड एंड देयरफॉर इट इज द लॉयर्स ड्यूटी, ठीक है, टू यू कैन से लुक एट सम काइंड ऑफ ऑफेंसेस एंड दैट इज कनेक्टेड विथ 34। ये दोनों साथ में अप्लाई करना, वो लॉयर का इंटेलिजेंस अप्लाई होगा वहां पे। कॉमन ऑब्जेक्ट मस्ट बी वन ऑफ द 5 इंग्रेडिएंट डिफाइंड 141, उसको अलग से, मतलब वो तो ऑफेंस ही अलग से। प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स नेसेसरी फॉर द कॉमन इंटेंशन, यहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्ट में बी फॉर्म्ड एट द यू कैन से प्रायर, मतलब कोई प्रायर मीटिंग नहीं चाहिए, है ना, दैट इज हाउ द आइडिया इज। कॉमन ऑब्जेक्ट में 5 या 5 से ज़्यादा लोग चाहिए, यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोगों में हो जाएगा। पार्टिसिपेशन इज अ वेरी क्रूशियल थिंग, नो नीड फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सेक्शन 149 का मतलब हो गया कि अगर एक ऐसे कहीं पे कुछ लोग वंडलाइज कर रहे, अनलॉफुल असेंबली कर रहे और वहां पे आप सिर्फ खड़े थे, आप उस असेंबली का पार्ट बने थे, ठीक है, तो भी आप कॉमन ऑब्जेक्ट के द्वारा एक ऐसे क्रिमिनल लायबिलिटी अट्रैक्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, है ना, यहां से एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या मुद्दा है। अ गैंग ऑफ 6 पीपल वेंट टू बैंक armed with weapon to commit money heist. While 5 of gang members went inside the bank, Mr. A, the 6th member, waited outside the bank to alert them on any threat. During the heist, one of the gang members fired a gun in the branch manager. As a result, he died. All 5 escaped and Mr. A was caught and arrested. क्या Mr. A is applicable? क्या Mr. A के ऊपर ये मर्डर का चार्ज लगेगा? नाउ मिस्टर ए वॉज आउटसाइड द बैंक, बैंक के बाहर था, पर बैंक के अंदर बाकी 4 लोग बैठे थे, ये सुनो, या 5 लोग गए थे। 5 लोगों ने जो क्राइम किया, मर्डर करने का, जो वहां पे बैंक मैनेजर था उसको मार डाला, ठीक है, उसका मर्डर करने का काम किया, विच इज इन द फर्दरेंस, ठीक है, इन द फर्दरेंस ऑफ देयर एक्शन, उसके एक्शन करने के लिए उन्होंने ये काम किया, एंड देयर बाई अगेंस्ट से मिस्टर ए इज ऑल्सो लायबल। सो मिस्टर ए इज लायबल विथ ऑल अदर मेंबर्स ऑफ द गैंग, ठीक है, बिकॉज सब लोग मिलकर वेपन्स लेकर गए थे,
है ना। मिस्टर ए को पता होना चाहिए कि वेपन लेकर जा रहे हैं तो ये मर्डर हो सकता है, वो ये अपने आप को डिफेंस नहीं मांग सकता कि भैया देखो मैं तो हम बाहर सिर्फ गार्ड करने गया था, हम तो सिर्फ चोरी करने के लिए सपोर्ट में थे, क्रिमिनल इंटेंशन हमारा था, ठीक है ना, पर हमारा सिर्फ चोरी करने का था, मेरा कोई इंटेंशन गलत नहीं था, ठीक है। ऐसा मिस्टर ए नहीं बोल सकता। मिस्टर ए को अपनी कंसिक्वेंसेस पता होनी चाहिए व्हेन ही पार्टिसिपेट्स इन सच काइंड ऑफ थिंग। मिस्टर रमन एंड राघव दे वर राइडिंग ऑन अ मोटरसाइकिल ऑन अ बिजी स्ट्रीट, ठीक है, नॉर्मली जा रहे थे। सडनली अनदर बाइकर अमन बम्प्ड इनटू देयर बाइक, सडनली मतलब एक तरीके का बम्पिंग हो गया। इन अ हीटेड आर्ग्यूमेंट बिटवीन ऑल थ्री ऑफ देम, राघव स्टार्टेड अब्यूजिंग अमन। राघव ने अमन को बुरा बुरा बोलना चालू किया, ठीक है। रमन ने अमन को आयरन रॉड से मार दिया, जोर से मार दिया, जिसकी वजह से अमन मर गया। तो क्या रमन एंड राघव दोनों लायबल है क्या? उनकी जॉइंट लायबिलिटी है ना। तो जॉइंट लायबिलिटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, प्री कंसल्टेड माइंड होना चाहिए, पहले से होना चाहिए। दोनों बाइक पे जा रहे थे, दोनों रास्ते में जा रहे थे, क्या उनका मीटिंग ऑफ माइंड था कि रास्ते में जो मिलेगा उसको मार डालेंगे? ना, ये नहीं था। ओके, ठीक है। क्या मीटिंग ऑफ माइंड एट द स्पॉट ऑफ द मोमेंट डेवलप हुआ? ऑब्वियसली नहीं। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लेकिन सर राघव झगड़ा कर रहा था, रमन ने आयरन रॉड उठाया और रमन को मार दिया, जिसके बारे में राघव को पता ही नहीं है। आयरन रॉड आया कहाँ से? कहीं दूर से आया, वी डोंट नो, ठीक है। सो राघव लायबल है? नहीं, राघव इज नॉट लायबल, ठीक है। राघव इज नॉट लायबल फॉर मर्डर एज देयर वाज नो कॉमन इंटेंशन टू किल अमन। समझ आया आपको? when you are reading this and there is a principle about common intention, you must know this. Okay, so what is common intention? वापस समझते हैं। It is a pre-arranged plan and acting in concert pursuant to the plan. Acting in concert to pursuant to the plan, which is in the furtherance of the plan, उस तरीके से काम करना। Common intention comes into being prior to the commission of the act. Act के पहले आता है ये, which need not be a long gap. बड़ा गैप होना नहीं चाहिए, वही मैंने आपको बताया, बहुत छोटा गैप हो सकता है। टू ब्रिंग कॉमन इंटेंशन इनटू इफेक्ट ऑफ प्री कंसर्ट is not necessarily be proved, but it may well develop on the spot as between number of persons and could be inferred from the facts and circumstances of the each case. बिल्कुल सही बात है। फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी caught hold of C where only B stabbed C with a knife, but A is also liable for the murder because there was a preconcerted plan and A captured Mr. C and B hit him. In the case of Pandurang versus State of Hyderabad, Supreme Court emphasized on this point that prior concert need not be something always very much prior to the incident, but could well be developed on the spot of the moment. ठीक है। Common intention does not mean similar intention of the several persons. To constitute common intention, it is necessary that the intention of each of them is known to the rest of the other people and it is shared between them. While Dukmochan Pandey versus State of Bihar, Supreme Court held that common intention which developed at the spur of the moment is different than the similar intention actuated a number of persons at the same time. The distinction between a common intention and similar intention may be fine, but is nonetheless very real and if overlooked may lead to miscarriage of justice. The mere presence of accused together is not sufficient to hold that they are having a shared common intention to commit the offense. Okay, so if all the people are present at one place, ठीक है, that does not mean they have a common intention. Common intention होने के लिए उनके बीच में कोई ना कोई ऐसा प्री-कंसर्टेड माइंड चाहिए। ओके, दिस इज वेरी क्रूशियल। सो दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने पूछा कि अगर ये पैराग्राफ आपको एग्जाम में दिया गया, ठीक है, अगर ये पढ़ते हैं, आफ्टर रीडिंग दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट in relation to the difference between common and similar intention, which is not correct. Note किया जाए, similar intention is developed prior to the commission offense, but common intention is developed only at the time of commission of the offense. गलत है। Under common intention, each of the offender is equally liable for the offense, but under similar intention, each of the offender is differently liable. Perfect है, ये right है।
In order to determine existence of similar intention or a common intention, one must always analyze fact and circumstances of each case. That is also right. The boundary between similar and common intention is very fine and it may sometimes overlap. बिल्कुल सही बात है. तो आंसर क्या होना चाहिए? A, that is not correct in relation to given this stuff. Mr. X and Mr. Y, they entered into the house at a night to commit theft. While committing theft, Mr. Y committed sexual assault on the minor girl of aged 11 year. Minor girl के ऊपर sexual assault हुआ. Identify which of the following offenses Mr. X is liable. Mr. X और Mr. Y का प्री कंसर्टेड माइंड था चोरी करना. ठीक है, पहले से सोचा हुआ था. अब वहां जाकर मिस्टर वाई कोई सेक्सुअल असॉल्ट करता है, क्या उसके लिए मिस्टर एक्स को पता है? नहीं. ठीक है, ओके. सो देयरफॉर मिस्टर एक्स इज लायबल ओनली एंड ओनली यू कैन से फॉर द थेफ्ट. ओके, बोथ ऑफ देम वर प्रेजेंट एट वन प्लेस. दो ऑफेंसेस हुए वहां पे, चोरी भी हुआ, सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ, बट दोनों का सिमिलर इंटेंशन था चोरी करना, बट दे हैड अ डिफरेंट इंटेंशन. ठीक है, ओके. सो ओनली थेफ्ट एज मिस्टर एक्स हैड अ डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम मिस्टर वाई. सो आंसर वुड बी सी. कंफर्टेबल है? वेरी गुड. सो दोस्तों, ठीक है, एक और क्वेश्चन आया आपके सामने. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड सिमिलर इंटेंशन? क्या दोनों में से सही है? इंटेंशन ऑफ अक्यूज्ड एंड को अक्यूज्ड कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम दिस फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस. राइट है. Under common intention, it is considered that all the accused have jointly committed the offense themselves are jointly liable. Yes, common intention में they all are jointly liable. Each accused is liable for the offense he has actually committed if the common intention cannot be proved. Yes, if common intention नहीं है, सिमिलर इंटेंशन है, तो हर एक बंदे ने जो भी गलती करी उतने के लिए ही वो लायबल है. सब लोगों का कॉमन लायबल नहीं है. सो दैट इज ऑल्सो राइट. सो आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ द अबव. ठीक है दोस्तों, वी इनवाइट यू टू ज्वाइन आवर protalentdigital.com, जहां पे आपको protalentdigital.com के ऊपर, ठीक है, ये जो वीडियो है वो मिलेगा, साथ में इसका पीडीएफ मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए. दोस्तों, पहले सेशन के लिए भी हमने आपको प्रैक्टिस पीडीएफ दिया था. दैट इज सच अ वंडरफुल कंटेंट अवेलेबल है ना. वी आर ब्रिंगिंग दिस कंटेंट फॉर यू फॉर अ रेगुलर प्रैक्टिस. ओके, सो डोंट मिस आउट ऑन इट. ओके, ठीक है. इसके अलावा वी आर ब्रिंगिंग अ न्यू बैच. ठीक है ना, फॉर यू कैन से 10th September. You can very well join that batch and it is going to be very useful to you. Okay, thank you and all the best.